Good evening to all of you. Today we are going to start a new lesson, carbon compound. So first of all, we'll see some basic things related to carbon compounds. So what is the compound? So आप लोगों को मालूम होना चाहिए compound मतलब क्या है? Compound. So when two or more than two substances combine together, when two or more than two substances combine together, they form a new substance with new physical and new chemical properties. It's called the carbon, or sorry, it's called the compound. So suppose we take the first example, hydrogen and oxygen. These are our regular life examples. पानी तो आप सब लोग पीते हैं. So पानी सबसे easy और हम हमेशा याद रख सकते हैं क्योंकि वो हमारी डेली नीड है. हाइड्रोजन इज हाईली इम्प्लेमेबल. Hydrogen is here highly inflammable, means it can easily catch the fire or it can easily burn. Okay, and oxygen support to the fire. When there is fire going on and if oxygen will get in that reaction, it will spread. Okay, it will occupy the large area. And when this hydrogen and oxygen will combine together, it will form their water. Okay, so we know this water we can use to stop the fire. We can use to stop the fire. So this is called the compound. This is called the compound. So compound definition, you have to remember when two or more than two substances combine together, they form a new substance with new physical and new chemical properties. It's called compound. Okay. So our lesson name is their carbon compound. So first, what is the carbon? Carbon is the Latin word which is made up from the carbo. It's made up from the carbo word. Carbo means coal. Okay, coal. आप लोगों को मालूम होगा coal मतलब कोयला. Okay. And for your kind information, in 9th standard if you will learn, you will get there lot of information about the carbon. So carbon हर जगह पे प्रेजेंट है. अभी जो मैं यहाँ पे पेन चला रहा हूँ जो इंक प्रेजेंट है, इंक में भी कार्बन है. ओके, आप लोग जो सांस लेते हो छोड़ते हो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर इवन दो इन आवर बॉडी टू. डीएनए, आवर बॉडी डीएनए इज मेड फ्रॉम द कार्बन. ओके, इवन दो प्लांट्स, if you have seen anyone who have burned, then what we are getting the coal. Okay, so means carbon is present everywhere. Okay, so now in last standard we have learned about the organic compounds and inorganic compounds. So what is the organic compounds? So आप लोगों ने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट रहता है, जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, मतलब अभी आप लोग देख सकते हो CO2 कार्बन इज प्रेजेंट. ओके, सपोज वी टेक योर C6H12O6 or H11 also we can take. So this is C6H11O6 or H12O6 glucose. In that also carbon is present. Wood, in that also carbon is present. मतलब जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे हमें कार्बन दिखाई देता है. कुछ चीजें छोड़ के जो है मेटल्स और ग्लास, सब है मेटल्स और ग्लासेस. Otherwise, everywhere carbon is present. So those compounds, their main constituent is the carbon. That compounds are called organic compounds. Now second, people see inorganic compound. So what is meant by inorganic compound? So from this first definition only you will get idea. जिस compounds में carbon present नहीं उसे क्या बोलेंगे हम? Inorganic compounds. अभी कौन से inorganic compounds? Metals. Metals are their inorganic compounds. Okay. So glass is inorganic compounds. And one thing you have to remember always: these organic compounds or its chemistry is called the carbon chemistry. Okay, means carbon chemistry को हम क्या बोल सकते हैं? Organic chemistry also, और organic chemistry को क्या बोल सकते हैं? Carbon chemistry. Okay, हर जगह पे कार्बन प्रेजेंट है, इस वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड. ओके,
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि कार्बन कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। आप लोग का ये कार्बन कंपाउंड कब से हम यूज करने लगे हैं? आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा, कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट लेसन था, लेसन नंबर 13 9th स्टैंडर्ड का। ओके, सो उसमें क्या दिया था कि आप लोगों ने देखा था, उसमें कार्बन की जो सिंबल है वो है सी। कार्बन का सिंबल क्या है? सी। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, वो है 6। एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ओके, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कैसे लिखी जाती है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 4। ओके, आप लोगों को एटॉमिक नंबर मतलब क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट्स कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो सर्किट छोटा निकाला हुआ है इसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज रहता है उसे हम प्रोटॉन बोलते हैं, और एक प्रोटॉन की जो संख्या है उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ओके, और एटॉमिक नंबर हम जेड से डिनोट करते हैं, याद रखो, किससे? जेड से। उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसमें लिखे प्लस पी एंड एन। एन मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, रिमेंबर दिस, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। लेकिन इसका मतलब है इसमें जब ये दोनों को हम काउंट करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तब वो बनता है एटॉमिक मास नंबर, और एटॉमिक मास नंबर हम ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास नंबर ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। अभी ये था बेसिक थिंग। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कैसे लिखते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 8 में या 7 में आपने देखा होगा कि ऐसा एक फॉर्मूला यूज किया करते थे, 2n²। n मतलब नंबर ऑफ सेल, n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ सेल। ओके, सो यहाँ पे आप लोग अगर पहली सेल लेंगे, जो यहाँ पे मैंने ये पहली सेल लिखी है, ये न्यूक्लियस की सेल नहीं होती है, याद रखो। न्यूक्लियस के बाद जो पहली सेल आती है उसे हम पहली सेल बोलेंगे, और वो सेल हम के लेटर से डिनोट करते हैं। कौन से? के लेटर से। ओके, यहाँ पे देखोगे कि n की जगह आपको लिखना है 1। n की जगह क्या लिखना है? 1। तो क्या है? 2n² मतलब 2 into 1²। सो 1 का स्क्वायर तो आप लोग मालूम है 1 है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से जो यहाँ पे लिखा है 2, तो उसमें से ये पहला हुआ आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी जो दूसरी सेल है उसका देखेंगे हम, n इज इक्वल टू 2 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? n इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप जब n इज इक्वल टू 2 लेंगे तब यहाँ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आपको क्या आएगी? n इज इक्वल टू 8। मतलब जो सेकंड सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो यहाँ पे हमने 2 दिखाई थे मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस ए फर्स्ट सेल, ए सेकंड सेल, 2 electrons are remaining there. In carbon how many are there? 6 only. So we will get here now these 4. Actually यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो सेकंड नंबर की सेल है उसे हम एल लेटर से डिनोट करते हैं। कौन से? एल लेटर से। उसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी वजह से ये कार्बन की वैलेंसी जो बन जाती है 4। कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे आप लोग मिलेंगे 1 2 3 4। सो कार्बन एक ऐसा आइटम है वहां पे आप लोग को मिल जाएंगे उसकी वैलेंसी भी सेम है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। अभी वैलेंसी मतलब क्या है? वो कितने और इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ले सकता है और एलिमेंट से ले सकता है, वो कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी। ओके, तो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स सपोज। तो यहाँ पे कार्बन की जो है वो देख रहे हैं कि सेकंड सेल में से 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें और 4 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से इसकी वैलेंसी क्या बन जाती है? 4। वैलेंसी क्या बन जाती है? 4। और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने बनते हैं? 4। समझ में आया क्या कर रहे हैं अभी? इसके बाद हमें जो देखना है, ये जो कार्बन है, कार्बन कब फाउंड हुआ? सो लगभग 200 साल पहले हमने इसके बारे में खोजबीन शुरू की थी, इसके बारे में जानकारी खोजना शुरू कर दी थी। फिर आप लोगों को मालूम होगा कि कार्बन, मैंने शुरू में बताया था कि कार्बन क्या है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और यहाँ का जो वर्ल्ड है हमारा उसमें से
मैं बोलूँ तो कम से कम 95%, कम से कम 95% जो एरिया है वो कार्बन ने ऑक्यूपाई किया है। मतलब जो भी कंपाउंड है उसमें से 95% क्या है, कार्बन ने ऑक्यूपाई किए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो कार्बन है उसके नियर अबाउट 10 मिलियन क्या है, कंपाउंड्स प्रेजेंट है। कितने? 10 मिलियन कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ओके, सो 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स, जब जो भी हमने खोजबीन किया है उसमें से 10 मिलियन अगर कार्बन कंपाउंड्स है तो बाकी के बहुत कम है। तो इसकी वजह से ये कार्बन, ये वर्ल्ड जो बना हुआ है वो कार्बन से बना हुआ है। बाकी के एलिमेंट आप लोग मालूम नहीं, जो भी आयन होगा जो भी कुछ होगा वो याद रखो। ठीक है, अभी एक 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड से, सो 200 years ago we have started to search about that carbon, to study about the carbon। और उसके बाद हमें ये पता चला कि ये कार्बन कंपाउंड से ये मतलब हमें जो कंपाउंड्स मिल रहे हैं इस धरती पे वो दो टाइप के, एक है ऑर्गेनिक और सेकंड कौन सा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, उसके बाद हम देख सकेंगे बॉन्ड इन द कार्बन कंपाउंड्स। सो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड की जो बॉन्डिंग है वो वेरी वीक रहता है, वैसे कहा जाए तो वीक रहता है। लास्ट ईयर में हमने देखा था कि जो डायमंड है, डायमंड की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आप लोग डायमंड के बारे में देखोगे तो एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है, बॉन्ड किया होता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग रहती है। और इसकी वजह से जो कार्बन कंपाउंड जो डायमंड, वो डायमंड बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। लेकिन जनरली हम जब देखेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है। ओके, सो यहाँ पे हम जो देख सकेंगे उसमें क्या है, थोड़ी सी वीक बॉन्डिंग भी रहेगी। ओके, सो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है, ओके, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने जो फोर्स रहता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे थोड़ा सा वीक दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट ईयर में हमने ये भी देखा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, दे आर नॉट एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। सो कार्बन के कौन कौन से एग्जांपल देखे हम लोगों ने, पहला देखा था डायमंड लास्ट ईयर में, 9th में कौन सा देखा था, डायमंड। उसके बाद हमने देखा था ग्राफाइट, और थर्ड था हमारा फुलेरन। ये तीनों एलोट्रोप से क्या है, कार्बन के एलोट्रोप से। एलोट्रोप का मतलब मालूम है आपको, एलोट्रोप का मतलब है उनके जो केमिकल फॉर्मूले वो सेम रहता है लेकिन उनका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है। ओके, केमिकल जो फॉर्मूला है वो सेम लेकिन उनका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है इन डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हमें जो डायमंड, ग्राफाइट, तुरंत देखे थे हमने आखिरी साल में, मैं थोड़ी देर के लिए उसे क्या कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोगों की याद में आ जाएंगे सब। ओके, सो हम सेकंड अभी जो देखना है कार्बन के बारे में, कार्बन का एटॉमिक नंबर आप लोगों ने देखा वो है 6। ओके, उसके बाद देखा आपने इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 4। ओके, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 4 और वैलेंसी भी कितनी उसकी 4। और आप लोगों को उसका एटॉमिक मास नंबर मालूम होना चाहिए, वो है 12। एटॉमिक मास नंबर क्या है उसका, 12। अभी कार्बन के बारे में हमें कुछ इंटरेस्टिंग थिंग देखनी है, जो चीजें है वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन वैसे तो उसकी वैलेंसी 4 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, फिर भी किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन या मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है। इसका ऑक्टेट वैसे को वैसे रहता है, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है, ये खाली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है दूसरे के साथ, किसी से लेता भी नहीं है और किसी को देता भी नहीं। क्या वजह है, किसी को कुछ देता भी नहीं है और लेता भी नहीं है। ये बहुत बोले तो हम जैसे साधु महापुरुष जैसा कार्बन एटम है। ओके, आप लोग देख सकते हैं किसी को भी देता नहीं, लेकिन क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, मतलब इसे मिल बांट के खाने की आदत है। कार्बन को क्या है, मिल बांट के खाने की आदत है। अभी वो मिल बांट के क्यों खाता है, उसकी भी कुछ वजह है। तो यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी हमने देखी थी वो है वैलेंसी 4। जब एक कार्बन दूसरे एटम को और दूसरे एलिमेंट के साथ जब शेयरिंग करता है तब क्या होता है, जब वो डोनेट करता है, डोनेट, जब इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, डोनेट करता है, तब उसके ऊपर डोनेट करते वक्त क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन सा भी एलिमेंट हो, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव।
और कार्बन की क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर एक दिया तो ठीक है, लेकिन उसको चार इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे। वो चार इलेक्ट्रॉन लेने को गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से वो क्या बन जाता है, अनस्टेबल बन जाता है। ओके, क्या बन जाता है, अनस्टेबल। इसकी वजह से किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है, उसके ऊपर जो निगेटिव चार्ज है उसका चार्ज वो बढ़ जाता है, और निगेटिव चार्ज जब उसके ऊपर बढ़ने लगते हैं तब भी वो अनस्टेबल बनता है। इसी वजह से कार्बन किसी को ना देता है ना किसी से लेता है। समझ में आया? यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया होगा पॉइंट देखेंगे हम, 1 2 3 4 है हमारे पास 3 पॉइंट्स है। सो टू अटेंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द नोबल गैस हीलियम नोबल गैस है। व्हाई इट्स कॉल्ड नोबल गैसेस, डू यू नो? हीलियम को नोबल गैस क्यों बोलेंगे? उसका डुप्लेट जो कंप्लीट होता है हीलियम, उसका क्या कंप्लीट होता है, डुप्लेट। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है, और हम देखेंगे कि उसका ये न्यूक्लियस है, तो उसके पहले से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और डुप्लेट कंप्लीट होने के बाद वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करता, इस वजह से वो क्या बन जाता है, नोबल गैस। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हमारे जैसे जब हमारे पास काम रहता है तब हमें कुछ सोचता नहीं, लेकिन काम नहीं रहता तो बहुत सारे हम जो करते, वैसे ही जिसके पास बहुत सारा काम, ये खुद ही क्या है, डुप्लेट कन्वर्ट किया हुआ बैठा है, इस वजह से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते देखा जाए तो फिर ये हमारा जो कार्बन है इसके जैसे जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहती है तो ट्राई करता है, तो इन दिस मेथड क्या होता है, उसका नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग लॉस ऑफ द यूरी इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयरफॉर टू लूज loss of the next electron, more energy is required, which makes the task more difficult. And moreover, the C4 plus, C4 plus मतलब क्या, वो जब 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तब उसके ऊपर क्या होगा, वो चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड वो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो वो अनस्टेबल बन जाता है, और इसकी वजह से ये क्या कर नहीं सकता कि अपने चारों के चार इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, और ये नोबल नहीं बन सकता। ओके, तो ये पहला पॉइंट हुआ हमारा, जो मैंने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी को देता नहीं। अभी दूसरा जो पॉइंट है आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो उसके बारे में दिया है, टू अटेंड द स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ द नोबल गैस नियॉन बाय एक्सेप्टिंग वन बाय वन as the 4 electrons in the valence shell. In this method, net negative charge on the carbon atom goes on increasing, and while accepting every new electron, therefore more energy required to accepting the next electron. मतलब यहाँ पे आप लोग जो देख रहे थे कि पहले इसमें जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था दूसरे को, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, ओके, तो ये क्या होता था, उसको जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना था तब उसको ज्यादा एनर्जी लगती थी कि दूसरे को डोनेट करने। ओके, किसमें देखा था हमने, वो जब उसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अब जो जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो किसी से ले रहा है, तब भी क्या होता है, उसके ऊपर वो प्रेशर बहुत आ जाता है, मतलब हम देखेंगे तो वो अनस्टेबल बन जाता है जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से किसी को ना देता है ना लेता है। तो फिर टू अटेंड द कॉन्फिगरेशन ऑफ नियॉन बाय द शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स of valence shells with 4 valence electrons for the atom. In this method, 2 atoms share valence electrons with each other, and valence shells of both the atoms overlap and accommodate the shared electrons. So यहाँ पे हम जो देखेंगे अभी इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रोसेस है उसमें वो क्या करता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 2 valence electrons, it's called the covalent bond. रिमेंबर जो आपके पास डेफिनेशन है, द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी, एक कार्बन दूसरे के साथ और एक शेयर करता है, दूसरे के साथ क्या करता है, शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन सपोज। ये यहाँ पे देखेंगे हम CH4 का जो एग्जांपल है हमारे पास CH4। ओके, सो ये कैसे लिखते हैं हम CH4, ऐसे लिखते हैं, ये आप लोगों में बाद में बताऊंगा ये क्या स्ट्रक्चर है, कैसा करना है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ की है, लाइन है एक्चुअली, ये क्या करता है, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ क्या करता है, शेयर करता है। ओके, तो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, सो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 111 उसमें देख सकते हैं, the chemical bond formed by the sharing of 2 valence electron between
द टू एटम्स इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम देखेंगे कि ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कोवेलेंट बॉन्ड से वो कैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हम दो तीन तरीके से दिखा सकते हैं उसको। तो पहला है हमारा डॉट लाइन स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर है, और तीसरा जो है हमारा वो क्रॉस स्ट्रक्चर। ओके, कैसे? तो पहले अभी मैंने दिखाया था ऑलरेडी CH इस डॉट लाइन स्ट्रक्चर, ये क्या है? डॉट लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी जो ये दिखाया था ये हम क्या करेंगे? डॉट में दिखाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डॉट स्ट्रक्चर। और अभी यही हम अगर ऐसे दिखाएंगे क्रॉस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास ऐसे थ्री स्ट्रक्चर से। और आप लोग को ये बात हमेशा याद रखेंगे, जब ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जब हम ऐसे दिखाते हैं इसको लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसी को ही हम बाद में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। इसी को ही बाद में हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी क्या है? ये कार्बन, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ये फॉर्म करती है। जो कंपाउंड से वो क्या करते हैं? तीन बॉन्ड फॉर्म करके, पहला होता है सिंगल, उसके बाद आता है डबल, और तीसरा आता है ट्रिपल। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होता है? एक जो एटम है वो दूसरे एटम के साथ सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अगर यहाँ पे हम देखेंगे, अभी क्या मिलेगा यहाँ पे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। हम उसका अलग एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोलेंगे, डबल क्यों बोलेंगे? तो इसके लिए भी कुछ रीजंस है। हम देखेंगे CH4 का पहले एग्जांपल, मतलब मीथेन गैस। CH4 का मतलब मीथेन गैस का CH4। ओके, आप लोगों को मालूम है कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। तो ये जब एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते तब देख सकते हैं ये ऐसा है। फर्स्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी सेम है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। और यहाँ पे भी देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इसकी वजह से क्या हुआ? ये दोनों ने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। देखो कार्बन की वैलेंसी हम देखेंगे वो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन की भी 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उनकी वैलेंसी जो है वो फुलफिल हो गई। उन्होंने क्या किया? एक कंपाउंड फॉर्म किया। ठीक है, अभी ये जो देखा था हमने, ये इसके तौर पे देखा था कि वैलेंसी एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अभी दूसरा जो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक नंबर मालूम है कितना है? वो 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो क्या आता है? 26। ओके, सो आखिरी जो सेकंड नंबर की सेल से उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 6। तो इसकी वैलेंस कितनी हो गई? 2। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 6, और वैलेंस कितनी है? 2। तो ये क्या करता है? जब इसको वैलेंसी फुलफिल करनी है तो उसको और दो इसके एटम की क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अभी हम लेंगे ऑक्सीजन O2, स्ट्रक्चर क्या लेंगे? O2। ओके, इसके दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वैलेंसी फुलफिल होती है। समझ में? उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को एक दो इलेक्ट्रॉन देके आपने क्या कर ली? वैलेंसी फुलफिल कर ली। सो ये हुआ हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या हुआ? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम देखेंगे नाइट्रोजन, जो हमारा सब्सटेंस है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। कितना है? 7। सो मतलब 7 हमें क्या मिलेगा? 2 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, सो अभी यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और इसकी भी क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो उनकी वैलेंसी फुलफिल हो जाती है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में? ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, डबल क्यों करता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अभी उसके बाद हमें जो देखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अभी हम देखेंगे कार्बन एंड वर्सेटाइल एलिमेंट। कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहा जाता है? मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो कार्बन है तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो सिंपल स्ट्रक्चर में भी मिलेगा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी मिलता है। ओके,
कार्बन की एक खासियत है कि आप वो बहुत सारे कार्बन आइटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग करके वो बड़ा मॉलिक्यूल बना सकता है, जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कार्बन कंपाउंड मीथेन, बट कार्बन इज डिफरेंट देन द अदर एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम कार्बन इज एक्सट्रीमली लार्ज in the beginning we have seen, except the objects formed from metals and glass or soil, all other objects are made from the carbon. Okay, in short brief, the entire living world or living kingdom is made from the carbon. याद रखो, मैंने पहले बताया था कि ये पूरा वर्ल्ड जो बना हुआ है वो कार्बन से बना हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो अगर किसी का मर्डर हो जाता है, किसी का खून हो जाता है और उसके बाद उसकी कुछ भी पहचान नहीं मिलती, उसकी शायद जो फेस है वो भी ऐसे पहचानने लायक नहीं होती, तब वो लोग कैसे पता लगाते मालूम है आप लोग? उसकी बॉडी में से डीएनए निकालते हैं, या शायद उस पर्सन का एक हेयर भी मिल जाए, एक बाल भी मिल जाए, तो उसके ऊपर से उस पर्सन की पूरा फेस, उसके बारे में सब जानकारी मिला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्बन फाइंड आउट करते हैं। डीएनए में से क्या? कार्बन, कार्बन डेटिंग मेथड बोलते हैं, और उसमें C14 नाम का कार्बन यूज किया जाता है। कौन से? C14। ओके, so यहाँ पे DNA is also I told it's made up from our carbon only. So इसकी जो compounds बनते हैं वो 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁴ से लेकर 10⁻12 this much big compounds will get from the carbon. Okay, or this carbon can form this much large number of compounds. Already मैंने बताया था कि ये कम से कम 10 मिलियन, कम से कम ना, जो हम लोगों को अभी तक पता है 10 मिलियन कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है। ओके, और ये सबसे ज्यादा नंबर है, चाहे किसी भी और कंपाउंड का नाम ले लेंगे तो उससे ये बहुत बड़ा और विज्ञान से उसको ये 100 गुना 1000 गुना ज्यादा है। ओके, तो इस वजह से कार्बन हैज ऑक्यूपाइड द एंटायर वर्ल्ड। ओके, अभी जो हम अगला देखने जा रहे हैं इस कार्बन के बारे में, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी कैटनेशन पावर। कौन सी है? कैटनेशन पावर। तो कैटनेशन पावर मतलब क्या है? कार्बन को एक एबिलिटी है, वो क्या कर सकता है? वो ये फॉर्म कर सकता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड द कैटनेशन पावर। ओके, आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वो क्या कर सकता है, वो कैटनेशन पावर।